Today we will talk about the profit loss. Yesterday I discussed about the percentage and some questions. And if you have any doubt regarding percentage or in any question, if you have any doubt, तो अगर आपके पास कोई डाउट है तो वो मुझे आप चैट बॉक्स में या फिर व्हाट्सअप आप कर सकते हो, मेल कर सकते हो. वेन एवर आई एम फ्री आई विल रेस्पॉन्ड, राइट. तो अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे. अगर आपको परसेंटेज में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हो या फिर व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हो. ठीक है. Next we'll talk about the profit loss. So profit and loss formula is used in mathematics to determine the price of a commodity in the market and understand how profitable a business is. मतलब एक बिजनेस करने के लिए आप बिजनेस में आपको देखना चाहते हो कि उसमें आपके पास गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, राइट. तो कोई भी आपके प्रोडक्ट है या फिर कोई सर्विसेज है, इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं. देयर आर टू इंपॉर्टेंट टर्म्स. वन इज called cost price and second one is selling price, right. And suppose for a shopkeeper, if the value of selling price is more than cost price, so first we will understand what is the cost price and what is the selling price. So cost price means जब कोई प्रोडक्ट जो है आप मार्केट के अंदर परचेज करते हो, तो जो उसको सेल करता है, तो सेल करने से पहले जो कॉस्ट उसके पास पड़ी है, दैट मीन्स जो कॉस्ट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस. या फिर जितने में आप जिसने बाई करी है, ठीक है, उसको मैं क्या कहूँगा, कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस मतलब जिस प्रोडक्ट को आप जितने रुपीज में सेल कर रहे हो, तो उस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस होगी, राइट. So profit and loss depend on two important terms, it is selling price and cost price. If the selling price is greater than cost price, suppose मैंने कोई प्रोडक्ट जो है 2000 में परचेज किया है, ठीक है, अगर उस प्रोडक्ट को मैं 3000 में सेल कर रहा हूँ, तो 2000 is the cost price and 3000 is the selling price, right. If the selling price is greater than cost price, then obviously there will be a profit. If the selling price is less than cost price, then obviously there will be a loss, right. तो जिस प्रोडक्ट को आप जितने ज़्यादा क्वांटिटी में, जितने ज़्यादा रुपीज में आप सेल करोगे, उतना ही आपको प्रॉफिट होगा. और अगर आप उस पर्टिकुलर रेट से आप कम में आप सेल कर रहे हो, दैट मीन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर लेस देन कॉस्ट प्राइस, ऑब्वियसली बात है आपको लॉस होगा. ठीक है. दिस इज द कॉमन थिंग दैट यू हैव ऑलरेडी नो. ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे रिपीट कर दिए. नेक्स्ट इज टू फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस, राइट. सो यू ऑलरेडी नो द व्हाट इज द प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट के अंदर आपके पास सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. तो ऑब्वियसली बात है, अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होगी, तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ऑब्वियसली देयर विल बी प्रॉफिट. तो फॉर्मूला फॉर द प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, then there will be loss. So cost price minus selling price, right. If you want the profit percentage, so always profit or loss percentage always based on the cost price, right. So profit divided by CP, right, that means selling price minus cost price, that is profit, and divide by CP into for the percentage you have to multiply with 100. Same thing will happen with the loss. We will calculate the loss on the base of for the CP, right. So if already you will calculate that particular loss, divide by CP into 100, then you will find the loss percentage, right. So profit and loss percentage is always calculated on based on the CP, that is cost price, right. There is a two important formula that you have to remember. Second is, if you want to calculate the selling price, right, if the profit occur, and if you want to calculate the selling price if the loss occur, right, then the formula for the selling price is equal to 100 plus profit percentage divided by 100 into cost price. That is the formula for selling price if the profit occur. And if the loss occur, then the formula is
100 minus loss percentage divided by 100 into cost price, right? अब आपको ये फॉर्मूला जो है याद करने की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, आप इसको क्या है कि इजीली आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो मैं आगे वो क्वेश्चन से बताऊंगा, राइट। और जो डिसऑनेस्ट डीलिंग है ये भी अपन डिस्कस नहीं करेंगे, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन, ठीक है। So you have to remember this particular formula and this particular formula, right? Profit and loss. Clear? Next is some important questions. Starting with the simple question. If the CP is given 96, that is cost price, and profit percentage is suppose 25%, and he is asking about the selling price. So simply if you apply the formula, SP equal to 100 plus profit percentage divided by 100 into CP. That is the formula. When you put the profit percentage, what is profit percentage? 25 divided by 100 into CP is 96. So 125 divided by 100 into 96. 5, 4, and this is 24 and 120. That is the SP, right? Then you apply the formula and you will get the answer, right? But आपको ये फॉर्मूला याद करना नहीं है, ठीक है। इट इज द फर्स्ट मेथड, आपको ये फॉर्मूला याद नहीं करनी है। अब सिंपल अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, बिल्कुल राघव 120, बट अपन इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय नॉट बाय यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है। इसका अपन सेकंड मेथड फाइंड करेंगे, ठीक है। सेकंड मेथड अप्लाई करेंगे। अब सेकंड मेथड में सबसे पहले आपको जब भी प्रॉफिट और लॉस का जब भी क्वेश्चंस आता है, तो इसमें इस पर्टिकुलर प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस में सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, जब भी आप प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन सोल्व करते हो तो उसमें आप सीपी को ऑलवेज 100% आप अज्यूम करो। तो आपको क्या करना है, सीपी को 100% अज्यूम करना है। ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस का इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब तक मार्क प्राइस नहीं आए, ये मार्क प्राइस वाले क्वेश्चंस में डिफरेंट होगा, बट मार्क प्राइस वाले क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी सब में आपको क्या करना है, सीपी को 100% मानना है, ठीक है। तो यही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट है जो हर क्वेश्चन में डिस्कस होगा, ठीक है। तो सीपी को ऑलवेज आपको क्या मानना है, 100% मानना है, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन पे अपन देखते हैं कि सीपी कितना दे रखा है, 96। इसका मतलब 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 96। तो आपको क्या पूछना है, एसपी बताना है। तो अगर मान लो कि कॉस्ट प्राइस आपकी 100 है और प्रॉफिट हो रहा है 25 का, तो एसपी कितना हो जाएगा, 125। 20% प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब आपको क्या निकालना है, 125% की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से सिंपली आप निकाल सकते हो 96 डिवाइड बाई 100 इंटू 125। तो आंसर कितना आ जाएगा, 120। सिर्फ इतना सा आपको काम करना है, ये दो स्टेप आपको करने हैं सिर्फ यहाँ पर। तो जो मैंने क्वेश्चंस का जो फॉर्मूला लगाया था उसको आपने इजीली सोल्व कर दिया। ये सेम मेथड अपन ने डिस्कस किया था परसेंटेज में भी। 100% की वैल्यू दे रखी है आपको 96 सीपी की वैल्यू, और प्रॉफिट हो रहा है 25%, मतलब एसपी कितना हो गया, 125%, फिर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो इंक्रीज होगा। तो 125% की वैल्यू पूछ रहा है, दैट मीन्स 96 अपॉन 100, दैट इज 1%, एंड फॉर 125% यू हैव टू मल्टीप्लाई 125, देन आंसर इज 120। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, जो जैसे ही मैंने जस्ट अभी आपको बताया। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? Clear? Same we have applied for the second question. That formula is for SP 100 minus loss percentage divided by 100 into CP, right? So 100 minus loss percentage 10 divided by 100 into CP. CP is
1900. So what is the answer? 19 into 19. So 1710. This is the answer. This is the formula. If you want to calculate from second method, this is the first method. And what is the second method? This cost price is the 100%, so 100% is equal to 1900. And यहाँ पर loss हो रहा है, that means loss means 90%. So value of the 90% is 1900 upon 100 into 90. Cancel out. So what is the value? 1710. Right? So आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, बट आई विल प्रेफर सेकेंड मेथड. ठीक है, क्योंकि ये सब जगह यूज में आएगा. यहां तक किसी को डाउट? इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 ऑब्जेक्ट्स. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, उस 11 ऑब्जेक्ट की जो कॉस्ट प्राइस होगी वो 15 ऑब्जेक्ट की सेलिंग प्राइस के इक्वल है. दैट मीन्स इसको अपन लिख सकते हैं 21 CP इक्वल टू 15 SP. ये दे रखा है. एंड व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज. तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि सीपी और एसपी में आप रिलेशन देख लिए 40%. बहुत फटाफट आंसर आ रहा है. क्या बात है, बहुत सही है. ठीक है, इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो 3 से 7, इसको 5. तो सीपी 7 सीपी इक्वल टू 5 एसपी. मैंने आपको बताया था कि जब ये इक्वल के फॉर्मेट में है तो इसका रेशियो अपोजिट हो जाता है. ये 7 5 है तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 5 7. अगर 5 रुपये की चीज़ आप 7 रुपये में बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, तो कितने का प्रॉफिट होगा? 2 का. और हमेशा प्रॉफिट किस पे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पे इंटू 100. कितना हो जाएगा? 2/5. दैट मीन्स 40%. ठीक है, विपुल आपका आंसर सही है. राइट, दिस इज द फर्स्ट मेथड. सेकेंड मेथड, इस तरह के क्वेश्चन में सिंपली आपको क्या करना है? सिंपली आपको सिर्फ डिफरेंस देखना है. 11 जो सीपी जो है और 15 का एसपी है, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 6 आ रहा है. और जो एसपी से जो मल्टीप्लाई में जो टर्म है वो कितनी है? 15 है. डायरेक्टली इंटू 15 इंटू 100. तो 6/15 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 40%. तो यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हो. दोबारा रिपीट कर देता हूँ. जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले, इसका वो क्या करना है? दोनों का डिफरेंस लेना है 21 एंड 15 का, दैट इज 6. और जो सेलिंग प्राइस का जो मल्टीपल है उसको आपको डिवाइड करना है इंटू 100. तो 20 - 15 6 डिवाइड बाई 15 इंटू 100. डायरेक्टली आंसर कितना आ जाएगा? 40%. दिस इज द सेकेंड मेथड. तो जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो वो आप अप्लाई कर सकते हो. एनी डाउट? Now same question but with data change. That cost price of 12 tables is equal to selling price of 16 tables. So what is the loss percentage? ठीक है, तो इसका मतलब 12 CP इक्वल टू 16 SP. इस फ्रैक्शन को आप 4 से आप कैंसिल आउट कर सकते हो. तो 3 CP इक्वल टू, रेशियो क्या होगा? अपोजिट होगा. 4:3. 4 रुपीज़ का जो प्रोडक्ट है वो आप 3 में सेल कर रहे हो, तो लॉस कितने का हुआ? 1 पे. हमेशा लॉस किस पे निकलता है? सीपी पे इंटू 100. कितना हो जाएगा? 25%. तो इंटू 100 आपको लगाना नहीं है, मैं बता देता हूँ. 1/4 को डायरेक्टली आप 25% लिख लिया करो. ठीक है. सेकेंड मेथड, जो इन दोनों का जो है डिफरेंस कितना होगा? 4 डिवाइड बाई जो एस पी का जो मल्टीपल है 16 इंटू 100. ठीक है, कितना हो जाएगा? 25%. ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर. क्लियर? वेरी गुड, राघव कशिश. Then move to the next concept, that is related to the mark price and discount. Okay, so what is the mark price? Mark price is the price at which the product or the services is a listed or selling. मतलब जो प्रोडक्ट पर MRP रिटर्न होती है, ठीक है,
तो मार्क प्राइस जो प्रोडक्ट पे लिखी होगी उसको अपन कहेंगे दैट इज द मार्क प्राइस, ठीक है, इसको कहेंगे एमपी। और डिस्काउंट क्या होगा, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, मतलब जो प्रोडक्ट पर रेट जो रिटर्न जो लिखी हुई है मार्क प्राइस और जो आप प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हो दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड द डिस्काउंट, राइट। तो डिस्काउंट इज द मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एंड जब डिस्काउंट परसेंटेज आप निकालते हो ऑलवेज, तो हमेशा जो डिस्काउंट परसेंटेज होता है ऑलवेज कैलकुलेटेड एट मार्क प्राइस, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि स्टूडेंट की सिर्फ और सिर्फ यही मिस्टेक्स होती है एग्जाम, कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम्स में यही मिस्टेक करते हैं। और जो प्रॉफिट और लॉस होता है इट ऑलवेज कैलकुलेटेड एट कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में उलझा देता है, तो आपको इस बात ध्यान रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज परसेंटेज एट कॉस्ट प्राइस एंड डिस्काउंट परसेंटेज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट मार्क प्राइस। तो इस कंडीशन में अपन क्या कर रहे थे, सीपी को 100% ले रहे थे, राइट। तो मार्क प्राइस अपन क्या करेंगे, मार्क प्राइस को अपन क्या करेंगे 100% लेंगे, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। तो इन द क्वेश्चन फॉर द डिस्काउंट we assume mark price as a 100%. In the profit and loss percentage question we are assuming CP is equal to 100%, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस, अगर सपोज आपको मार्क प्राइस गिवन है और सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है। मैं फॉर्मूला प्रेफर नहीं करूँगा, एक बार के लिए आपको बता दूंगा, कभी कोई पूछ सकता है कि साहब आपने फॉर्मूला नहीं बताया, ठीक है, तो इसलिए मैंने फॉर्मूला बता दिया, बाकी अपन फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ठीक है। एक बार मैं बता दूंगा, फिर आपको डायरेक्टली बताऊंगा किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो आपको मार्क प्राइस और डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है, सेलिंग प्राइस आप फाइंड कर सकते हो, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज इनटू MP divided by 100, right? When you want to calculate the ratio of the CP and MP, then the ratio of the CP and MP is 100 minus discount percentage, 100 plus profit percentage. This is the formula for the equivalent, right? ये फॉर्मूला याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, आपको याद हो जाता है तो डायरेक्टली आप कर सकते हो, बाकी मैं डायरेक्टली मेथड से बताऊंगा, ठीक है। तो ये बट ये इंपॉर्टेंट, दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए। द डिस्काउंट परसेंटेज ऑलवेज कैलकुलेट एट द मार्क प्राइस। नाउ मूव टू द क्वेश्चंस। In this particular question, the mark price of a cricket bat is 1000 rupees and is sold at 800 rupees. So find the discount percentage. So simple, the discount means discount equal to मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। मार्क प्राइस कितना है 1000, सेलिंग प्राइस इज 800 एंड डिस्काउंट इज 200। तो डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट SP. What is SP? Sorry, MP. And what is MP? 1000 into 100. तो 1/5, 1/5 मतलब 20%। तो आंसर क्या होगा 20%, ठीक है। क्लियर, राघव तिवारी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्क प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज 240 एंड 25% डिस्काउंट एंड फाइंड द सेलिंग प्राइस। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको दे रखा है मार्क प्राइस कितना दे रखा है 240, आपको 25% डिस्काउंट कर दिया, तो इसका मतलब डिस्काउंट करने का मतलब कितना डिस्काउंट हो गया 60 रुपीज़ का, तो कितना हो गया मार्क SP कितना हो गया 180। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये मार्क प्राइस आपको 240 गिवन है, 25% डिस्काउंट कर दिया, मतलब 60 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया, तो कितना सेलिंग प्राइस हो गया 180। क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सक्सेसिव डिस्काउंट। ये ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, बट यहाँ पे भी आ गया तो मैं दोबारा बताता हूँ आपको। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड at two consecutive discounts, ठीक है, टू डिस्काउंट और वी कैन कॉल इट टू consecutive discount, so it is said that it is sold after two successive discount of the consecutive discount is equal to the effective discount percentage s plus y minus xy divided by 100, राइट। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, ठीक है। ये फॉर्मूला डायरेक्टली आपको अप्लाई करना। सपोज वी हैव ए क्वेश्चन, a t-shirt is sold after providing two successive discount of 20%. That means first discount is 20% and again second discount is
also 20%. If the mark price of t-shirt is 200, then find the selling price, right? इसका मतलब दो डिस्काउंट आपको दे रहा है कंजिगेटली, तो 100 प्लस 20 प्लस 20 माइनस 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, तो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया 40 माइनस 4, 36%. तो दिस इज द डिस्काउंट परसेंटेज इफेक्टिव. अब इसको मार्क प्राइस दे रखी है आपको 200, सेलिंग प्राइस पूछ रहे हैं, राइट? तो मैंने बताया था कि मार्क प्राइस को हमेशा क्या कर सकते हो आप, ऑलवेज अज्यूम 100%. तो 100% इज इक्वल टू mark price. Mark price is 200 and the discount is 36%. तो SP कितना हो जाएगा 64%. What is the value of 64%? 200 by 100 into 64. That means 120. क्लियर? कि आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना था, तो इफेक्टिव आपने डिस्काउंट परसेंटेज निकाला, उसके बाद में आपने मार्क प्राइस अज्यूम की 100%, तो आपको 200 गिवन है, और एफपी कितना हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जो मार्क प्राइस वो 100 थी, डिस्काउंट आपने दे दिया 36 का, तो सेलिंग कितने में सेल करेगा उसको, सोने का डिफरेंस कितने में 64 में, 64% मैंने फाइंड कर. क्लियर? अगर आपको कोई डाउट है तो आप माइक अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको करना है. The mark price of pen is 200. After providing 30% discount, a shopkeeper gain a profit of 40% in CP of the pen. ये क्वेश्चन आपको करना है. कशिश का आंसर आ रहा है 100. और एनीवन? राघव तिवारी 100. ओके, वेरी गुड. बाकी सब भी फाइन. तो फर्स्ट मेथड आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने सीपी और एमपी का, ठीक है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज. तो आपको सीपी कितना गिवन है, सीपी तो फाइंड करना है, एमपी कितना गिवन है 200, इक्वल टू डिस्काउंट कितना गिवन है आपको 30 एंड प्रॉफिट गिवन है आपको 40, राइट? तो 70 अपॉन 140 कितना आ गया 1/2. तो सीपी यहाँ से कितना आ जाएगा डायरेक्टली, सॉरी, सीपी आ जाएगा 100. आशीष, राघव और सुमित तीनों का सही, ठीक है? अब मूव टू द सेकेंड मेथड जो जस्ट मैंने आपको प्रीवियस में डिस्कस किया था. 200 मार्क प्राइस है, डिस्काउंट दिया मैंने 30%, कितने का प्रोडक्ट हो गया 60 माइनस हो गया 140 का प्रोडक्ट हो गया, ठीक है? ठीक है, तो ये मेरे पास सपोज सीपी है, ये एसपी है, तो एसपी कितना हुआ 140 में सेल कर रहा है, सीपी निकालना है, इसका मतलब 140% जो है वो इक्वल है 140 के, और सीपी कितना होगा ऑलवेज 100%, ठीक है? तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100. 140% की वैल्यू 140 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100. इसमें सीपी कितना हो जाएगा 100, ठीक है? इससे भी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? ये जो मेथड जो है, ये वाला मेथड जो है वो मोस्टली 99% क्वेश्चन में काम आएगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, द डिसऑनेस्ट डीलिंग. ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, डिसऑनेस्ट डीलिंग का. अब डिसऑनेस्ट डीलिंग क्या होती है, सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि अगर कोई मान लो कोई शॉपकीपर है,
वो ये कहता है कि मैं जितने में प्रोडक्ट जो है परचेज करता हूँ उतने में प्रोडक्ट में बेच रहा हूँ, ठीक है। बट वो क्या करता है कि फिर आपको जो उसका वेट है या जो मेजरमेंट है उसमें वो उस पर्टिकुलर वेट और मेजरमेंट को कम करके सेल कर रहा है। सपोज आपको बोलता है कि मैं आपको 1 kg वेट दे रहा हूँ, ठीक है। बट वो क्या करता है कि उस 1 kg वेट की जगह 1000 ग्राम की जगह सपोज उसने 800 ग्राम या 900 ग्राम आपको दे रहा है। तो आपको सपोज 900 ग्राम दे रहा है, इसका मतलब 100 ग्राम का उसका प्रॉफिट हो गया एक तरह से, ठीक है। अब वो प्रॉफिट या प्रॉफिट जो हो रहा है वो उनको फाइंड करना है, ठीक है। एक तरीके से वो बोल रहा है कि मैं प्रॉफिट नहीं दे रहा, बट प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ किस में ले रहा हो, उसको मेजरमेंट और या फिर उसके वेट में ले रहा है, ठीक है। तो इसको अपन कहते हैं डिसऑनेस्ट डीलिंग, ठीक है। जो बेईमानी जो कर रहा है उसके ऊपर अपन बात करें, डिसऑनेस्ट डीलिंग, ठीक है। तो मैंने इसलिए लिखा है इफ इट ए पर्सन और शॉपकीपर सेल्स एनी प्रोडक्ट और द रॉन्ग वेट, और उस रॉन्ग वेट की जगह से जो प्रॉफिट अर्न करेगा वो अपन फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं। ए शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल राइस एट ए कॉस्ट प्राइस। वो कहता है कि जितने प्रोडक्ट एट कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है कि जितने में मैंने प्रोडक्ट जो खरीदा उतने में मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है। बट यूजेज ए फॉल्स वेट। वो क्या कर रहा है, 900 ग्राम वेट दे रहा है इंस्टेंट ऑफ 1000 ग्राम। दैट मीन्स वो प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 100 ग्राम का प्रॉफिट कमा रहा है। इसी तरीके से ए पर्सन सेल्स क्लॉथ टू द कस्टमर बट यूजेज द फॉल्स रीडिंग। फॉल्स रीडिंग मतलब मेजरमेंट, तो मेजरमेंट जो दे रहा है आपको 90 मीटर दे रहा है इंस्टेड ऑफ 100 मीटर। तो इसका मतलब वो 10 मीटर का क्या कर रहा है, प्रॉफिट ले रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से डिसऑनेस्ट डीलिंग की वजह से जो प्रॉफिट हो रहा है उसको अपन कैलकुलेट करेंगे इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू एरर माइनस एरर डिवाइड बाई ट्रू वेट माइनस एरर इंटू 100, ठीक है। ये प्रॉफिट का भी फॉर्मूला आप याद कर लो, बट आपको मैं डायरेक्टली बताऊंगा। अभी के लिए आप ये फॉर्मूला याद कर लो कि जो एरर आएगी, एरर का मतलब क्या है कि जो पर्टिकुलर वो वेट दे रहा था और जिस पर्टिकुलर वेट ओरिजिनल में कस्टमर को मिला, ठीक है, दोनों में डिफरेंस, इट इज एरर, ठीक है। तो एरर सपोज ये 100 ग्राम 1000 ग्राम है और 900 ग्राम, तो इसकी एरर कितनी हो जाएगी, 100 ग्राम, ठीक है। और ट्रू वेट मतलब जो वेट उसको देने चाह रहा था, इट इज 1000, और एरर कितना है, 100, ठीक है। तो देट इज द ट्रू वेट माइनस एरर इंटू 100, ठीक है। तो जो वो प्रॉफिट आएगा दैट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको, क्योंकि यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत बार पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। यूजिंग द faulty weight, a dealer gives only 1650 of milk his customer instead of 2 liter, that means 2000 ml, ठीक है। अब आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, इसमें एरर कितनी हो जाएगी, द एरर इज 2000 माइनस 1650, कितना हो गया, 350, दैट इज द एरर, ठीक है। तो एरर डिवाइड बाई ट्रू वेट, ट्रू वेट कितना था मेरे पास, 2000, ठीक है, माइनस एरर कितना है, 350 इंटू 100। तो मेरे पास आ जाएगा 350 डिवाइड बाई 1650 इंटू 100। ये आप कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा। ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ये कुछ पॉइंट्स में आएगा, ठीक है। 21.2, 21.2, ठीक है, परसेंटेज, ठीक है। ये फॉर्मूले है। अगर मैं सेकंड मेथड की बात करूं जो अपन नॉर्मली करते हैं, तो अब अपन बात करते हैं सेकंड मेथड की, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। अब देखो, एक्चुअल में जो पर्टिकुलर डीलर जो है या फिर जो शॉपकीपर है वो क्या कहता है कि मैंने आपको 2000 ml दिया है, ठीक है। बट एक्चुअल में उसने कितना दिया है, 1650 ml। इसका मतलब क्या हुआ, जो शॉपकीपर जो है या डीलर जो है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हुई, क्योंकि एक्चुअल में तो उसने 1650 दिया है। इसका मतलब जो इसकी कॉस्ट प्राइस है वो उसकी 1650 पड़ी, ठीक है। बट उसने सेलिंग प्राइस कितने एम एल दिया, 2000। तो 1650 उसके लिए कॉस्ट प्राइस होगी और 2000 उसके लिए सेलिंग प्राइस होगी। तो उसने कितना प्रॉफिट कमाया, 350। और प्रॉफिट हमेशा किस पे अपन काउंट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे इंटू 100, ठीक है। तो डायरेक्टली कितना आ गया, 21.2। तो दिस इज द बेस्ट मेथड
यही आपको अप्लाई करना है, आपको फॉर्मूला याद नहीं करना, ठीक है। फॉर्मूला दे रखा है बुक्स वगैरह में, तो इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। जितने कम फॉर्मूले आप याद करोगे उतना आप इजीली आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, क्योंकि इतने ज्यादा फॉर्मूले जो है आप याद नहीं कर सकते, ठीक है। तो अपन डायरेक्टली अपन ये मेथड अप्लाई करेंगे। क्लियर? एनी डाउट दिस क्वेश्चन? Now move to the next question. A man gain 30%. इसका मतलब गेन्स का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। बाय सेलिंग ए आर्टिकल फॉर ए सर्टेन प्राइस, इफ ही सेल्स इट्स ए डबल द करंट सेलिंग प्राइस, मतलब जो सेलिंग प्राइस वो पहले वो दे रहा था उससे डबल और कमा रहा है, मतलब समझ रहे हो कि उससे डबल कमा रहा है, और देन व्हाट विल द प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, जस्ट मैंने आपको बताया अभी, ये सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले मान लो वो 100 रुपये, कोई प्रोडक्ट के 100 रुपये का था, मान लेते हैं अपन 100 रुपये का था, तो प्रॉफिट कितने का कमा रहा था? 30% का। तो इसका मतलब पहले जो ये बन मान लेते हैं इनिशियल में, ठीक है। इनिशियल में मतलब इसका प्रॉफिट कितना हो रहा था? 30%। तो कितने में बेचेगा उसको? 130। अब बोल रहा है कि वो डबल से जो सेल कर रहा है वो करंट प्राइस की, करंट सेलिंग प्राइस की डबल प्राइस में सेल कर रहा है। इसका मतलब पहले 130 में करा तो यहाँ पर कितने में करेगा? 260 में। और कॉस्ट प्राइस तो सेम ही है, तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 160 का। और किस पे निकाल रहे हैं? कॉस्ट प्राइस पे इंटू 100, तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 160%, मतलब 100% से भी ज़्यादा चला गया, क्योंकि ये डबल में कर रहा है, तो इसका मतलब 160% का उसका प्रॉफिट हो गया फ्रॉम द प्रीवियस करंट प्राइस, ठीक है। क्लियर? क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? नेक्स्ट इज द सक्सेसिव सेलिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है सक्सेसिव सेलिंग का। सक्सेसिव सेलिंग का मतलब क्या है कि आपको कोई प्रोडक्ट है, सपोज मान लो ए पर्सन ने बी पर्सन को कोई प्रोडक्ट सेल किया, ठीक है। अब जो ए पर्सन की जो सेलिंग प्राइस थी वो बी पर्सन के लिए क्या बन गई? कॉस्ट प्राइस। सपोज मान लो ए पर्सन ने बी पर्सन को कोई प्रोडक्ट सेल किया, ठीक है। तो जो जिस रेट में इन्होंने सेल किया था इसके लिए वो क्या होगी? कॉस्ट प्राइस। अब बी ने सी को कोई प्रोडक्ट सेल किया, तो जिस जिस प्रॉफिट या लॉस से उसने सेल किया था, जो जो उसकी सेलिंग प्राइस थी, इसकी जो सेलिंग प्राइस थी इसके लिए क्या बन जाएगी? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द सक्सेसिव सेलिंग। if a product is sold for more than one item from one person to another person, it is some profit or loss, both may be profit or loss, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए सोल्ड ए पेन टू बी, ए ने बी को सोल्ड किया 10% प्रॉफिट से, और फिर उसने बी ने सोल्ड कर दिया सी को 20% प्रॉफिट से, राइट। दिस इज कॉल्ड द सक्सेसिव सेलिंग। तो सक्सेसिव सेलिंग के अंदर अगर कंटिन्यूस में प्रॉफिट है, कंटिन्यूस में प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट परसेंटेज, अगर फर्स्ट में भी प्रॉफिट हो रहा है सेकंड में भी प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर एक्स है और फर्स्ट में और सेकंड में सपोज वाई है, तो टोटल होगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू 100, तो हमने प्रीवियस में डिस्कस किया, राइट। अगर सक्सेसिव, अगर आपके पास लॉस है, ठीक है, तो सक्सेसिव लॉस में क्या होगा? एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई 100। अगर एक प्रॉफिट है और एक लॉस है, तो प्रॉफिट वाले को इंडिकेट करोगे पॉजिटिव साइन से, लॉस को इंडिकेट करोगे आप नेगेटिव साइन से, ठीक है। तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, जो अपन ने प्रीवियस में भी करा है, ठीक है। तो अपन एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। इफ ए बॉट एन आर्टिकल एट 200 रुपीज, कितने में सेल किया इसने? 200 रुपीज में, ठीक है। अब सॉरी 200 में सेल नहीं किया, खरीदा है, ठीक है। और सोल्ड कितने, किसको किया है? बी को। कितने प्रॉफिट से? 20% प्रॉफिट से, ठीक है। अगेन बी सोल्ड टू द सी आर्टिकल
विथ 10% प्रॉफिट। बी ने सी को कितने प्रॉफिट में सेल किया है? 10% प्रॉफिट से। देन फाइंड द पेड बाय सी। तो सी का मुझे जो उसकी कॉस्ट प्राइस है वो ही पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए अपन को सिंपल क्या करना है कि सबसे पहले सक्सेसिव सेलिंग सक्सेसिव प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ पे 20% प्रॉफिट है या 10% प्रॉफिट है, तो 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10 डिवाइड बाई 100 कितना आ गया यहाँ पे? 30 प्लस 10 30 प्लस 2 इंटू 32, ये पे 100 आएगा, मैंने 200 कर दिया, 32%, ठीक है। अब 32% उसको टोटल प्रॉफिट हुआ है। स्टार्टिंग के अंदर कॉस्ट प्राइस कितनी थी? कॉस्ट प्राइस को ऑलवेज अपन एज्यूम करते हैं 100% से, दैट इज 200। प्रॉफिट कितने का हुआ? 132 का। ये सीपी है तो एसपी कितना हो जाएगा? 132%, ठीक है। तो 132% मीन्स 200 डिवाइड बाई 100 इंटू 132 इक्वल टू 264, राइट। सिंपल है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अगर सपोज मान लो कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, अभी तक अपन एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे, अब हम दो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। अगर मान लो आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं और उनकी सेम सेलिंग प्राइस है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कॉन्सेप्ट कब कब अप्लाई होगा? जब उसकी सेलिंग प्राइस सेम हो, मतलब सेम, दो डिफरेंट प्रोडक्ट अपन सेम प्राइस में सेल कर रहे हैं, ठीक है। एक को आपने प्रॉफिट में बेचा कुछ परसेंटेज से और एक को आपने लॉस में बेचा, तो ऑलवेज लॉस होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑलवेज लॉस होगा, ठीक है। और लॉस कितना होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 100। ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, इसको स्किप नहीं करना, ठीक है। अगर मान लो सपोज दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट की सेलिंग प्राइस दोनों की सेम है, एक में आपको प्रॉफिट मिला, एक में आपको लॉस मिला, तो ओवरऑल आपको लॉस होगा। कितना होगा? एक्स स्क्वायर बाई 100%। हियर एक्स इज द परसेंटेज और लॉस, राइट। तो ये आपको फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। सेकेंड कॉन्सेप्ट है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल। ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो है डायरेक्टली मैंने बता दिया है, जो ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है स्टार्टिंग में, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे अपन ले लेते हैं। ए मैन सोल्ड 2 बाइसिकल एट सेम सेलिंग प्राइस। तो अगर दो प्रोडक्ट आ जाए आपको और सेम सेलिंग प्राइस आ जाए, तब डायरेक्टली आप वो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है। एक को आपने 20% लॉस से बेचा, एक को आपने 20% प्रॉफिट से बेचा, तो ओवरऑल प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? इतना मुझे पता है कि लॉस होगा, ठीक है। फर्स्ट ये से कंफर्म लॉस होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली आप क्या निकालोगे? एक्स स्क्वायर अपॉन डिवाइड बाई 100, तो 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, दैट मीन्स 4%। और ये क्या होगा? लॉस होगा, टोटल। क्लियर? एनी डाउट? प्लीज रेस्पॉन्ड इन चैट बॉक्स। ये कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन करो आप। सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर अपन नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे। सिर्फ देखते ही आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का। वो हम देखना चाह रहा था कि कितना टाइम लग रहा है। इस क्वेश्चन में आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को देखा और डायरेक्ट आंसर। 25 राघवेंद्र कशिश, वेरी गुड। तो सिंपल सा मैंने मेथड बताया था आपको कि दोनों का आप डिफरेंस देख लो और सेलिंग प्राइस के प्रोडक्ट से आप डिवाइड कर दो। तो 5 माइनस 4 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 100, तो 1/4 क्या होगा? 25%, ठीक है। तो आपको पेन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और फर्स्ट मेथड भी आपको दोबारा बताया था, इधर डायरेक्ट मेथड था। तो 5 की जो कॉस्ट प्राइस है
वो 4 की सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो इनका जो रेशियो कितना आ जाएगा, जस्ट अपोजिट 4:5। 4 रुपये की जो प्रोडक्ट जो है आप 5 में सेल कर रहे हो, 1 का प्रॉफिट हुआ, 4 पे प्रॉफिट हुआ 100, तो कितना गया 25%, ठीक है। सेकेंड मेथड, दोनों का डिफरेंस 5 - 4 डिवाइड बाई 4 इंटू 100, तो कितना आ गया 25%। सिंपल। इस क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, फिर भी मैं बता दूंगा क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं बुक के अंदर, तो मैं बता, ताकि आपको फॉर्मूला जितने कम याद करो उतने ज़्यादा बेहतर है। इफ़ ए पार्ट ऑफ आइटम आर सोल्ड X%, मतलब कुछ पर्टिकुलर आइटम्स का जो कुछ पार्टीशन की अपन बात करें, तो ए पार्ट आपको X% लॉस में आप सेल कर रहे हो, देन फॉर मेकिंग नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब बाकी बचा हुआ जो पार्ट है, कितना बचा हुआ पार्ट होगा 1 - A, तो बाकी बचा हुआ जो पार्ट जो है उसको आपको कितने में सेल करना पड़ेगा, ठीक है, कितने परसेंटेज प्रॉफिट में सेल करना पड़ेगा, ताकि आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं हो, कोई भी लॉस नहीं हो, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कि आपने कुछ पार्ट आपने लॉस में सेल किया है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो नेक्स्ट जो बचा हुआ पार्ट है वो आप किस में करोगे, प्रॉफिट करोगे, ठीक है। ये प्रॉफिट करोगे तभी आके जाके जो है आपका नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो बचा हुआ जो रेस्ट आइटम जो है उसको आपको सेल करना है, तो AX/1 - A में आपको सेल करना पड़ेगा, ठीक है। इतने परसेंटेज लिखा नहीं है, इतने परसेंटेज में सेल करना पड़ेगा। A इज द AF पार्ट एंड हियर X इज द X% लॉस, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला। तो in this particular question 10 पेन्स कॉस्ट 100 रुपीज ईच, मतलब एक पेन की कॉस्ट जो है वो 100 रुपीज है, और टोटल जो पेन्स है वो नंबर ऑफ पेन्स आर 10। इफ हाफ ऑफ द पेन आर सोल्ड एट 10% लॉस, उसने जो हाफ पेन है वो 10% लॉस पे सेल किया है, एंड फाइंड एट व्हाट प्राइस रिमेनिंग ईच पेन शुड बी सोल्ड फॉर मेकिंग नो प्रॉफिट नो लॉस। डायरेक्टली फर्स्ट मेथड AX/1 - X, तो इक्वल टू 0.5 इज A, क्योंकि हाफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाफ का मतलब 0.5 पार्ट इंटू X, यहाँ पे 0.5 इंटू सर 5 आएगा ना, क्या हुआ, 10 पेन है, हाफ ऑफ द पेन मतलब 5 और बचेंगे ना, 0.5 थोड़े है। ये पार्ट्स में लिख रहा हूँ, पार्ट्स नहीं समझ रहे आप, पार्ट्स का मतलब है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इज 1। अगर इसमें हाफ आपने माइनस कर लिया इसमें पार्ट्स, इसमें लिखो, ये देखिए नंबर नहीं है, ए इज नॉट अ नंबर इन द फॉर्मूला, ए इज पार्ट, राइट, ठीक है। तो 1 - 1/2 दैट इज हाफ, ठीक है। और x कितना है यहाँ पर, x मतलब परसेंटेज कितना है 10, ठीक है। 1 - 10 कितना आ गया यहाँ पर 5, सॉरी 1 - एक मिनट, फॉर्मूला क्या था, एक 1 - A था, मैंने फॉर्मूला गलत लगा दिया, 1 - A, यहाँ पे 0.5 आएगा, ठीक है। तो 5.0.5 मीन्स 10%, तो डायरेक्टली कितना आ गया 10% आ गया फॉर्मूले से। सेकेंड मेथड जो आप नॉर्मली अप्लाई करते हो, ये मेरे पास सपोज CP है, ये सपोज SP है, ठीक है। तो CP टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 10 पेन है, 100 ईच कॉस्ट है, तो कितना रुपीज का कॉस्ट पड़ रहा है 1000 में, और 90 मतलब उसका जो हाफ पेन्स है, तो हाफ कितना हो जाएगा, मतलब 5 पेन 10% लॉस से बेच रहा है, दैट मीन कितने में बेच रहा है 90 रुपीज में बेच रहा है, मतलब 100 रुपीज की चीज़ जो है 10% में लॉस में बेच रहा है, 90 रुपीज में बेच रहा है, ठीक है। और नंबर ऑफ ईच पेन्स, अगर मान लो कॉस्ट उसकी मान लेते हैं 5 है, और x नंबर ऑफ पेन्स है, इसका मतलब कितने का कितना डिफरेंस आ गया, नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए, दैट मीन CP इक्वल टू SP, नो प्रॉफिट नो लॉस पे क्या होगा, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस की इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 5, 50 डिवाइड बाई 5 कितनी आ गई 1 और 1 अगर 10 कॉस्ट है, 100 रुपीज़ की चीज़ को आप 110 में बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 10%, 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 10%, तो इससे भी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है।
तो मैं आपको ये फॉर्मूला प्रेफर नहीं करूंगा, डायरेक्टली आप इस पे जाओ, क्योंकि ये मेथड सब में अप्लाई होगा जितने भी क्वेश्चन है।